آج ہندوستان میں مسلمانوں کی آبادی تقریباً 200 ملین ہے، لیکن تعلیمی لحاظ سے وہ سب سے زیادہ پسماندہ اور بیکورڈ ہیں۔ 2011 کے سروے کے مطابق 42.7% مسلم آبادی تعلیم سے محروم ہے، جو کہ تمام دوسری مذہبی کمیونٹیز کے مقابلے بہت زیادہ ہے۔ سرکاری ادارہ نیشنل سیمپل سروے آرگنائزیشن نے 2013 میں اپنی رپورٹ میں کہا تھا کہ ہائر ایجوکیشن میں قومی شرح 23.6% ہے، جبکہ مسلمانوں میں یہ شرح 13.8% ہے۔ مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے جہاں ایک طرف حکومت ہند کوشش کر رہی ہے، وہیں دوسری طرف ملت کا دانشور اور تعلیم یافتہ طبقہ بھی اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ اچھے اسکول قائم کرنا وہ اپنے آپ میں ایک بڑی چنوتی ہے، اس لیے کہ جو گائیڈنس کہیں سے ملنی چاہیے وہ ایسے لوگوں کی ملنی چاہیے جنہیں اس چیز کا تجربہ ہو۔ تو یہ تجربے کار ہیں، وائس چانسلر رہے، آرمی کے کمانڈر رہے، جنرل رہے، اور ان کی جو ٹیم ہے وہ سب پڑھے لکھے لوگوں کی ہے۔ آج کی جنریشن ہے وہ بڑی ٹیلنٹڈ ہے، لیکن کیا ہے ان کو صحیح گائیڈنس ملنی چاہیے، صحیح ایڈوائس ملنی چاہیے، صحیح ماحول ملنا چاہیے، ایٹماسفیئر ہونا چاہیے۔ یہ سب چیزیں کسی بچے کو اگر حاصل ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ہمارے بچوں میں وہ کمی نہیں ہے کہ ہم لوگ ٹاپ میں نہ آ جائیں۔ بہت بڑا کام ہے، لگ رہا ہے کہ یہ چھوٹا کام ہے، مگر اس کی اہمیت بہت ہے کہ بچہ اگر اس ہر علاقے سے جہاں پہ ایجوکیشن کی سویدھائیں اپلبدھ نہیں ہے اور وہاں پہ اپلبدھ ہم لوگ کرائیں گے۔ نواب ابن سعید خان کہتے ہیں کہ سچر کمیٹی نے مسلمانوں کی جس پستی کی طرف اشارہ کیا ہے، اس سے یہ حقیقت ہم پر واضح ہو جاتی ہے کہ ہمیں بھی سر سید کے نقش قدم پر چلنا ہوگا اور سر سید کی تعلیمی تحریک کو دوبارہ شروع کرنا ہوگا۔ میں نے ہر جگہ یہ کہا ہے کہ سر سید تحریک کیا چیز ہے۔ یہ تحریک کے لفظ ایک ایسا ہے کہ لفظی معنی تو ہے، مگر ہے کیا چیز؟ اینٹ پتھر نہیں ہے، عمارت نہیں ہے اس کی تحریک کرنا، بلکہ جو تعلیم یہاں پڑھتے ہیں وہی تحریک ہے اسی یونیورسٹی اور کالج۔ تو آج ان کا مقصد جو اصل تھا وہ یہ تھا کہ یہ تحریک ہر جگہ پہنچائے۔ تحریک آپ ہے، کتاب نہیں ہے، کوئی عمارت نہیں ہے، بلکہ آپ جو پڑھتا جاتا ہے آپ ہے۔ میں ہمیشہ لڑکوں سے یہ کہا کرتا ہوں کہ دیکھو تم پر ایک ذمہ داری ہے کہ جب تم اس کالج سے نکل کے جاؤ اور جب بھی اس کی خدمت کی تمہیں ضرورت ہو تو فوراً اس کی خدمت کے لیے آؤ۔ جب تک تعلیم کا انتظام نہیں ہوگا یہ قوم کبھی اٹھ نہیں سکے گی۔ سر سید ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے ذریعے ایک نئی تعلیمی تحریک کا آغاز ہو چکا ہے اور جنرل ضمیر الدین شاہ کی سرپرستی میں یہ تحریک اور یہ کارواں آگے بڑھ رہا ہے۔ جنرل ضمیر الدین شاہ نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے طور پر سماج کے کمزور اور مظلوم طبقے کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کی جب بات کی تو ان کی ایک آواز پر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نے نہ صرف لبیک کہا بلکہ سر سید ڈنر کینسل کر کے تمام اماؤنٹ جنرل شاہ کے سپرد کر دیا۔ 51 لاکھ تو اسٹوڈنٹ کی طرف سے تھے اور باقی کچھ اور پارٹیز نے مدد کی، مگر زیادہ مدد جو ہے سلمان جعفری صاحب، زیادہ جو سیکریفائس ہے اس میں وہ سلمان جعفری صاحب کی ہے۔ جنرل ضمیر الدین شاہ نے وقت کی نزاکت اور تقاضے کو ذہن میں رکھتے ہوئے سر سید ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی بنیاد ڈالی اور ماڈرن سیکولر سکولز قائم کرنے کا ارادہ کر لیا۔ مظفر نگر میں پہلا سر سید نیشنل اسکول کا قیام عمل میں آیا۔ جو سب سے بڑی ضرورت ہے ہندوستان کے مسلمانوں کی وہ ہے تعلیم، اور تعلیم کہاں؟ تعلیم کی بنیاد، اور تعلیم کی بنیاد کہاں شروع ہوتی ہے؟ اچھے اسکولوں میں۔ تعصب کی دیوار کو توڑنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے علم۔ علم سے ہی تعصب کی دیوار جو ہے آپ پھاند سکتے ہیں، توڑ سکتے ہیں۔ ہمیں دیکھ لیجئے، ہم تینوں بھائیوں کو الحمدللہ اچھا
फाउंडेशन मिला स्कूल का। ये हमारा जो प्रोजेक्ट है सर सैयद नेशनल स्कूल्स का, अगर इंशाल्लाह कामयाब ज़रूर होगा। जब कामयाब होता है तो ये एक रेवोल्यूशन होगा इंडियन मुस्लिम्स के लिए, जिसको मैं बोलता हूँ रेनेसांस, रीबर्थ, यानी उभर पाएंगे हिंदुस्तान के मुसलमान। ये रेनेसांस होगा, ये एक रेवोल्यूशन होगा इंडियन मुस्लिम्स के लिए। और मैं दोबारा बतलाता हूँ कि इसमें हम ज़रूर कामयाब होंगे। कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं, हारा कभी नहीं हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह इस मिशन में भी हम लोग कामयाब होंगे। सर सैयद नेशनल स्कूल का मकसद क्वालिटी तालीम के साथ आला अखलाकी कदरों को फरोग देना है और समाज के तमाम तबकात को बगैर किसी भेदभाव के तालीम और तरबियत फराहम करना है, ताकि एक सेहतमंद और खूबसूरत समाज फिर से वजूद में आ सके। जनरल ज़मीरुद्दीन शाह, सलमान जाफरी और उनके दीगर अहबाब और रफ़क़ा की कोशिशों का असर ये हुआ कि मुल्क की अहम शख्सियात इस फाउंडेशन से वाबस्ता हो गईं और हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। मुल्क के कोने कोने से लोगों ने खतूत लिखे और अपनी ज़मीनें सर सैयद एजुकेशन फाउंडेशन को डोनेट करके जनरल शाह को यकीन दिलाया कि पूरी कौम उनके साथ खड़ी है। 40 फैमिलीज़ ने ये वादा किया है कि वो हमें 2 एकड़ ज़मीन देंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, जो कि 130 साल कदीम इदारा है, जिसकी कोशिशों से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में आया, आज़ाद हिंदुस्तान में मुसलमानों को तालीमी पस्ती से बाहर निकालने के लिए सर सैयद एजुकेशन फाउंडेशन के साथ बाज़ाब्ता MOU साइन करके शरीक कारवां हो गया है, क्योंकि स्कूलों का क़याम खुद उसके मकासद में शामिल था। यही सबब है कि रियाजुर रहमान खान शेरवानी, प्रोफेसर सैयद जिल्लुर रहमान और असद यार खान सर सैयद एजुकेशन फाउंडेशन की तमाम सरगर्मियों में दिलचस्पी लेते हैं और रहबरी फरमाते हैं। तालीम से बढ़कर दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। किसी कौमों की, मुल्कों की, ख़ानदानों की तरक्की का राज तालीम के अंदर पिना है। तो किसी भी ख़ानदान में या मुल्क कौम में पहले एजुकेशन आती है, फिर मनी, फिर सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अपनी और अपने बच्चों की फ़िक्र जानवर को भी होती है। चिड़िया बच्चों के मुँह में दाना डाल रही है, बिल्ली बच्चों को दूध पिला रही है। अब अगर इंसान भी ये करता रहे कि मैं और मेरी बीवी बच्चे, तो होश है, जानवर है, भर रहा है पेट अपना भी बच्चों का। तो ये शऊर और ये एहसास तालीम ही के ज़रिए पैदा होता है। सलमान जाफरी साहब ने और ज़मीरुद्दीन शाह साहब या और दूसरे लोगों को लेकर जो ये सिलसिला शुरू किया है सर सैयद एजुकेशन सोसाइटी के ज़रिए से, और मुज़फ़्फ़रनगर में एक स्कूल भी इन्होंने कायम किया है, ये बहुत बड़ा काम है जो वो अंजाम दे रहे हैं। मुझको उसकी इत्तलात और ज़राए से भी मिली हैं और मैंने वीडियो भी देखी है, जिससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि कितनी शानदार इमारत तामीर की गई है और कितने बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं और डिसिप्लिन वे के अंदर वो मुख्तलिफ़ तक़रीबात में, फंक्शंस में हिस्सा लेते हैं। तो इस तहरीक को बढ़ावा देना चाहिए और इसके अंदर हमारी कोशिशें शामिल होनी चाहिए कि हम न सिर्फ मुज़फ़्फ़रनगर या एक आध शहर बल्कि हिंदुस्तान में ख़ास तौर पर यूपी के मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर इस तरह के स्कूल कायम करें। अभी ये सन 1906 में जो रेजोल्यूशन पास हुआ था, उसके ज़रिए से अब हमारी सन 1920 में यूनिवर्सिटी कायम हो गई। अब हम जो काम कर रहे हैं, अब सर सैयद एजुकेशन फाउंडेशन के साथ मिलके दूसरा काम के दूसरे शहरों में, गाँवों में जाके वहाँ पे अपने स्कूल खोलें, ताकि वहाँ के गांव के बच्चे वगैरह वहाँ पे वो तालीम आसानी से हासिल कर सकें। सर सैयद नेशनल स्कूल की बुनियाद 8 अक्टूबर 2014 को रखी गई और 2016 से तालीमी सेशन का आगाज हो गया। यह स्कूल मुजफ्फरनगर कांधला हाईवे से मुंसलिक गांव जौला में वाक़ है, जो दिल्ली से तकरीबन 110 किलोमीटर के फासले पर है। सर सैयद नेशनल स्कूल अपने तर्ज तामीर से लेकर तरीक़े तालीम और तरबियत के लिए शोहरत पा चुका है। स्कूल की कामयाबी का जायजा लेने के बाद सहारनपुर में सर सैयद नेशनल स्कूल की तामीर के लिए जनाब मजाजुल हक ने अपनी जमीन सर सैयद एजुकेशन फाउंडेशन को डोनेट कर दिया और इस तालीमी तहरीक से वाबस्ता हो गए।
इस तरह के स्कूल चप्पे चप्पे पे खुलें। मैं तो ज़िले की बात भी नहीं करता, मैं तो चाहता हूँ एक शहर में 4-4, 5-5 स्कूल इसके खुलें। और ये तय है बात कि जिस शहर में, जिस ज़िले में ये स्कूल खुल गया और लोगों पे उसका इतना ज़्यादा असर होगा इंशाल्लाह कि लोग वाकई अपने बच्चे दूसरी जगहों से निकाल के इनके यहाँ दाखिल करेंगे। क्योंकि जो हालात मैं इनके स्कूल के देख रहा हूँ वो मुझे किसी और स्कूल के नहीं दिखे। मेरे बहुत स्कूलों में जाना रहता है अल्हम्दुलिल्लाह, और जिस तरह का मैं सोशल काम करता हूँ, मेरे पास खुद के पास तो टाइम नहीं है, ना इस तरह की सलाहियत है, मगर अल्लाह ने मेरी इस अंदर की सोच और तड़प की वजह से मुझे इन लोगों से मिलवा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं बहुत अंदर से सेटिस्फाई हूँ कि मैं ठीक लोगों के साथ जुड़ गया हूँ। सर सैयद नेशनल स्कूल नो प्रॉफिट नो लॉस के उसूल पर चलाया जा रहा है ताकि क्वालिटी तालीम से हर वो तबका मुज़य्यन और मुस्तफीद हो सके जो कल तक तालीम से कोसों दूर था। जो बच्चे हैं, जो गरीब, जो बेचारे कहीं स्कूल में पढ़ नहीं सकते, फीस अदा नहीं कर सकते, उनके माँ बाप मजदूरी करते हैं, उनको पेट पालना भारी पड़ रहा है, वो कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएंगे? इस मिशन के तहत ये स्कूल कायम किया गया है। स्कूल की अब तक की परफॉर्मेंस और अचीवमेंट्स को सामने रखते हुए प्रोफेसर परवेज तालिब ज्यादा से ज्यादा स्कूलों के क़याम पर जोर देते हैं। जो सर सैयद तहरीक का मेन पहलू था कि हम लोग हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस कायम करें, लेकिन जो बुनियादी तालीम है वो इतनी आम हो जाए कि फिर इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का हम फ़ायदा उठा सकें। तो मेरे ख़्याल से इसकी इस वक्त बड़ी सख्त ज़रूरत है कि एक क्वालिटी एजुकेशन अफोर्डेबल कॉस्ट पे उन मासेस को दी जाए जिनके बच्चे एस्पायर कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें अच्छी एजुकेशन मिलेगी, उनके लिए वो स्कूल कायम हों। और इस वक्त टैलेंट भी छोटे टाउन्स में, कस्बात में बहुत ज़्यादा है। बड़े शहरों में जो जिनको हासिल करना था वो कर चुके, और उनके आप दूसरी तरह की प्रॉब्लम शुरू हो गई, प्रॉब्लम्स ऑफ एफ्लुएंस शुरू हो गई। लेकिन वो अवाम जो कस्बात में हैं, टाउन्स में हैं, जो ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन उस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर तभी किया जा सकता है जब उनको क्वालिटी एजुकेशन स्कूल लेवल पे मिलेगी। मौजूदा वक्त में तालीम बहुत महंगी हो चुकी है। जो माँ बाप क्वालिटी एजुकेशन अपने बच्चों को नहीं दे सकते, उनकी जिम्मेदारी उठाना वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। आज तमाम अहले नजर और कौमी व मिल्ली शख्सियात एक मुश्तरका लाए अमल और कॉमन गोल के साथ आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि अब सोचने का नहीं, काम करने का वक्त है। जो ज़्यादा वेल ऑफ नहीं है, जो जिनमें गुर्बत है, उन बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि बहुत सलाहियत है इन बच्चों में, खाली उनको अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत है। और ये कमी जो है हम सर सैयद नेशनल स्कूल में पूरी करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह हिंदुस्तान के टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट, हिंदुस्तान के टॉप IAS ऑफिसर्स, हिंदुस्तान के एकेडमिशियंस, स्पोर्ट्समैन सर सैयद नेशनल स्कूल से पास आउट होंगे। आज के इस दौर में 350 से 625 रुपए मंथली लेकर इंग्लिश मीडियम में क्वालिटी एजुकेशन फराहम करना उन्हीं इदारों के लिए मुमकिन हो सकता है जो तालीम को खिदमत खल्क का जरिया समझते हों। पिछले कुछ सालों से जब से सर सैयद एजुकेशन फाउंडेशन कायम हुई, हम लोग दूर दूर इलाक़ों में गए, लोगों से मिले। इस बात का शिद्दत से एहसास हुआ कि क्वालिटी स्कूल्स की बहुत ज़रूरत है। वो इदारे जो कि तालीमी मैदान में काम कर रहे हैं, उन पर ज़िम्मेदारी बहुत बड़ी है। कम्युनिटी के पास रिसोर्सेज हैं और वो उनको देना भी चाहते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि ये स्कूल डेवलपमेंट और मैनेजमेंट का जो काम है वो बहुत सिस्टमेटिक मैनर में, वेल प्लान्ड और डिसिप्लिन अंदाज में किया जाए, क्योंकि हर स्कूल एक बेंचमार्क बनेगा आने वाले स्कूलों के लिए, और स्कूल के ऑपरेशंस और डिसिप्लिन रोल मॉडल की हैसियत रखेगा उन लोगों के लिए जो इसमें अपनी खिदमत देंगे और वो बच्चे जो इनमें तालीम हासिल करेंगे। मुजफ्फरनगर कैंपस की कामयाबी के बाद सर सैयद नेशनल स्कूल सहारनपुर, बागपत, मेरठ और हापुड़ में शुरू होगा। आज मुसलमानों का तालीम याफ्ता तबका इस हकीकत से वाकिफ हो चुका है कि अगर मुसलमान क्वालिटी एजुकेशन से आरास्ता नहीं होंगे तो जिंदगी की हर दौड़ में पीछे रह जाएंगे। और जब कोई कौम पीछे रह जाती है तो फिर समाज में उसकी कदर बाकी नहीं रहती। फिर उसका तालीम याफ्ता तबका हो या गैर तालीम याफ्ता तबका, वक्त
दोनों के साथ यकसां सलूक करता है। अभी वक्त है कि जो जनरेशन, जो औलाद हमारे सामने हैं, इनको अगर हम तालीम से, इनको हम ज़ेवर से इनको आरास्ता कर देंगे तो ये आने वाली नस्ल हमारे लिए दुआएं देंगी। और इस तरह के स्कूल अगर जगह जगह अगर कायम हो जाएं तो मैं समझता हूँ कि बहुत करीब ज़माने में हमारी कौम बहुत इल्मी मैदान में बहुत आगे बढ़ सकती है। सर सैयद ने अपनी दूरअंदेशी और फिरासत से ये जान लिया था कि तालीम से ही मुसलमानों की तकदीर बदलेगी। उनकी अमली जद्दोजहद की दास्तां हमारे लिए रोशन शाहराह के मानंद है। उस वक्त भी कुछ लोग उनकी मुखालफत कर रहे थे और कुछ उनके मिशन के साथ ही थे। सूरत हाल आज भी कुछ ऐसी ही है। आज जरूरत इस बात की है कि हम एक दूसरे की मदद करें और अल्लाह ने जो नेमतें हमें बख्शी हैं उससे मखलूक खुदा की खिदमत करें। सर सैयद एजुकेशन फाउंडेशन आज आपको दावत अमल दे रहा है। आइए साथ चलें, अपनी कौम और मुल्क की खिदमत करें ताकि हमारी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल रोशन हो।